What's inspired you the most? What inspires me the most is women with strength and resilience. यार मैं बहुत ही इमोशनल औरत हूँ, मैं हर इमोशनल मूवी को देख के रोती हूँ, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अच्छे लफ्जों में तो मुझे याद नहीं करती होगी वो. I can make anything. I love food. I cook. I mean, I'm a good cook, by the way. For communication, I prefer Snapchat. Hello, hello. So, how are you guys doing? So, we're making a video today out of your questions from the audience of Instagram because मैंने poll किया था Instagram पे कि what do you guys want to know about me और उसके questions आप मुझे भेजें तो हम एक YouTube वीडियो में आपको उसका जवाब देंगे. So here we go. What's your dream job? Dream job. My dream job would be becoming a fashion icon internationally so that I'll get the chance to work with all the international celebrities and I would style them. एंड थोड़ा सा मैं उसके अंदर पाकिस्तानी ट्रेडिशनल और फैशन का टच भी डालना चाहूँगी बिकॉज यू नो आप इंटरनेशनली किसी प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सो या कभी मौका मिले तो लाइफ किसके साथ स्विच करना चाहिए? life switch. Okay, if you talk about professionally, Pat McGrath because वो बहुत legendary रहे हैं beauty industry में उनकी जो जितनी भी उनकी what do you call it जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं वो उन्होंने एक actually चेंज लाया है ब्यूटी इंडस्ट्री में थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाया है थ्रू देयर प्रोडक्ट्स तो वो हैं शार्लेट टिलबरी हैं ये सब ऐसे लोग हैं जिनके साथ अगर स्विच हो जाए लाइफ तो क्या ही बात है पाकिस्तानी भी तो होना चाहिए ना कोई बंदा. यार पाकिस्तानियों से पहले कुछ इंप्रेसिव काम तो करवा दो ना. What's inspired you the most? What inspires me the most is women with strength and resilience, the way they support each other and you know it's just so beautiful जब आप औरतों को एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान से लेकर आर्ट के मैदान से लेकर हर चीज़ में जब आप आगे आगे देखते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखते हैं आई थिंक इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं होती इंस्पायर करने की. The question is, what dish you make without the recipe? I can make anything. I love food. I cook. I mean, I'm a good cook, by the way. A lot of people think that I can't cook, but I cook. We know you are good. अच्छा अनस तुमने कब हमारे खाने खाए? हमने खाए हैं. खाए? हमने खाने भी खाए. मतलब ये अच्छे वे में कह रही है मेरी टीम या बुरे वे में ये मुझे नहीं पता बट खाने जरूर खाए होंगे I'm sure. खाना अच्छा बनाते हैं? चलो. So yeah, I can make dum keema, I can make yakni pulao, I can make different types of omelets, scrambled with cheese, Spanish, Mediterranean omelette, French toast. बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ मैं. तो ये तो आपने नहीं खाएंगे भी. तो आप कभी नाश्ते पे आए ना शूट करने सुबह तो आप शूट करने आते नहीं दोपहर में आते हैं तो अब what am I supposed to do with that? नेक्स्ट बड़ा मजे का क्वेश्चन है. Who would you trust to bury a body? My best friend. Definitely my best friend. And then after that my sister. Yes. Nice. सबके पास फोन होता है. हाँ. तो आप कौन सी ज्यादा ऐप यूज करेंगे? कौन सी ऐप ज्यादा यूज करते हो? Instagram. I guess Snapchat. Yes. Oh my God. My team knows all my secrets. Yes, Instagram and Snapchat. Yeah. For communication, I prefer Snapchat. And for scrolling and doing my things, Instagram. Yeah. And YouTube also. Yeah. I like to scroll on YouTube also, but very less. Mostly, you can say Snapchat and Instagram. Yeah. So next question is, what movie makes you never fail you cry? Never fails to make me cry. यार मैं बहुत ही इमोशनल औरत हूँ मैं हर इमोशनल मूवी को देख के रोती हूँ तो मेरे साथ जो भी इंसान होता है yes
Karan Johar's and you know Dilwale Dulhaniya Le Jayenge to I mean any emotional movie. How would your best friend describe you? यार ये तो उससे पूछो जाके, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई अच्छे लफ्जों में तो मुझे याद नहीं करती होगी वो. Badass, flirt, um, you know, मोस्टली सबके बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही होते हैं, उनको सारी हकीकत पता होती है. yeah, so she would like naughty, notorious, fun. I am fun actually when it comes to normal life. I'm a very fun-loving person, and I try to make other people also enjoy life around me. So yeah, fun-loving, badass, sexy, Because they know fashionista. everything more than your family. Yeah. मूवीज तो सभी देखा है. Hmm. तो हॉरर मूवीज ओह माय गॉड, देखो सबसे पहले तो मैं प्रेफर ही नहीं करती हॉरर मूवी देखना, बिकॉज मुझसे हॉरर का जो एक वो है, पता नहीं यार, हॉरर नहीं देख सकती. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर माई बेस्ट फ्रेंड वंस इनवाइटेड मी फॉर द नाइट ओवर, और उसने हॉरर मूवी लगा दी और उसने मुझे बताया नहीं कि ये हॉरर मूवी है, और थोड़ी देर के बाद ना उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलना शुरू हुआ, एंड I have this instinct by God that I can tell, it's a bad guy, there's something going on. There's instinct you can tell कि कुछ गलत हो रहा है. तो I am telling her constantly कि ये किस किस्म की creepy movie है, ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं है और ये बंदा सही नहीं है. And she's like, shut up, you watch, keep on watching. और literally थोड़ी देर के बाद ना मैं blanket के अंदर थी, and I was like, fuck, I don't want to see anything. So I'm that bad, but I can actually tell that who's the wrong guy. थोड़ी देर बाद वो चीजें फीलिंग्स साथ में होने शुरू हो. No, you can tell ना, किसी के अंदर उस तरह की एनर्जीज होती है ना, तो you can guess. किसी के अंदर होता है. God has given you, so you better take care of yourself and us. So, Benish, इतना कुछ आपने माशाल्लाह से किया, कमाया और अपना एक नाम फेम बनाया. एक रीस्टार्ट का बटन आ जाए आपकी लाइफ में, आप क्या करेंगी? प्रेस करेंगी? To restart? Yes. Okay, let's see. Restart करना चाहिए, restart नहीं करना चाहिए. Restart करके मैं बहुत सारी और चीजें जो मैंने नहीं की उनको मैं alter कर सकती हूँ. लेकिन what if क्या restart के बाद ये सब चीजें मुझे मिलेंगी जो नहीं भाई. I'm good. I'm not putting the press button. No. I'm not pressing this button. No restart for me. फिर से start. नहीं, God has been very kind to me. Mashallah. I was very lucky to enter the industry in such a young age and conquer everything I did. And I worked with some amazing people. I don't want to change that. Yeah. अब हमने सब पे पोस्ट डाली तो कमेंट और हाँ, वो हर किस्म के सवालात हर किस्म के क्वेश्चन तुमने फिल्टर नहीं किए थे, तुमने सारे डाल नहीं, तो अभी तो हमने सारे रखे हैं ना, तो देखेंगे फिर हम क्या करते हैं. तो एक मजेदार क्वेश्चन आया है कि आर यू अ मेमन? क्यों मैं कहीं से मेमन लगती हूँ? देखो, मेमन एक कैफियत है. मेमन होना एक कैफियत होती है. Do I look stringy from somewhere to you guys on Instagram? No, I'm not Maiman. I am a blend of Iran and Pakistan. My mother's Pakistani and my father's Irani. So yeah, I'm not Maiman. What is the most worn item in your closet? Most worn item? I wear a lot of black, so there are 2-3 black pants which I repeat a lot of times because उनकी fit भी बहुत मजे की है, और black pants के साथ बहुत सारे shirts हैं मेरे जो मैच हो जाते हैं. तो yeah, I think that is the item I repeat a lot. Black तो all time favorite है सबका. Black pants. हाँ, but pants का ये होता है ना, tricky होती हैं. So I have this 2-3 cuts, two cuts which I've repeated a lot of times. Other than that, nothing. A lot. बहुत सारे ऐसे कपड़े जो मैंने एक दफा पहने, बहुत सारे ऐसे कपड़े जो मैंने एक दफा भी नहीं पहने. So yeah. अगर जिंदगी में कभी मौका मिले, फ्री में किसी कंट्री में आप स्विच हो जाएं. हाय, मुझे तो फ्री में सफर कर रहा है बाहर.
वो तो ये सभी कौन चले ने सभी चले ये आएंगे। कौन नेक इंसान है? तो कौन सी आप प्रेफर करेंगी, आप जाना चाहेंगी कि यार मैं इधर सेटल हो जाऊं? पागल हो जाऊं। आई गेस पाकिस्तान इज बेस्ट। कोर्स कराची में रहने वाले कराची को इतना आसानी से छोड़ नहीं सकते. माय हार्ट इज इन कराची. दो ऑब्वियसली यू नो इफ यू सी तो समटाइम्स मुझे मैं कम्प्लीटली पाकिस्तानी भी फील नहीं करती, तो काफ़ी डिस्टॉर्टेड फील करती हूँ ना इधर की बहुत सारी चीज़ें, जैसे लोग सिंधी हैं, वो पंजाबी हैं, मेरा कोई कल्चर नहीं है इधर. बट स्टिल आई फील वेरी कराची कराची हाइट यू नो. सो इन दैट वे आई लव कराची. बट अगर फ्री में कोई सेटल कर ही रहा है तो इटली. या I think नाइस it's प्लेस। like the beautiful place. Architecture बहुत मजे का है. You know, beauty, fashion, लोग. I mean, yeah, anytime Italy. इटली ऑल टाइम फेवरेट है सबका वैसे। हाँ हाँ. तो मतलब आर्किटेक्चर की खूबसूरत सड़कें हैं, छोटे छोटे आप इमारतें देखें उनकी, क्या आर्ट है. मतलब ऐसी सराउंडिंग में अच्छा, रहने से ना मजे की बात है कि उनका आर्ट जो है ना उनकी अपनी ब्यूटी में भी झलकता है, मतलब उनके अपने oh कल्चर। yes, हाँ oh yes. तो वो मजे की। And the Italian boy. यस। टू मच हो जाएगा ना यूट्यूब के लिए. वापस आ जाते हैं इटली से, वापस आ जाए. फ्री में गए हुए थे, वापस आ जाते हैं. वर्स्ट हैबिट ऑफ योर्स? Worst habit of mine. Mm, I'm not too good with phones. यस। 2-2 घंटे तक मैं जवाब नहीं देती, कभी कॉल्स नहीं उठाती, अपनी दुनिया में रहती हूँ. तो हाँ, इस चीज़ की शिकायत मुझे बहुत सारे लोग करते हैं. हम लोग को खुद एक्सपीरियंस है, तो आप दो तो तीन दिन नहीं, दो तीन hats off दिन to all the people who work for me. एंड ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं खुद कभी कभी शर्मिंदा होती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं इस आदत को कैसे सही करूँ, मगर नहीं हो पाता है. लाइक आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ चेकिंग. प्रॉब्ली आई एम अ मिलेनियल, दैट्स व्हाई. ओहो। इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ. बट या, लेकिन ये सही कर लें फोन आदत। पे सही जवाब नहीं देना. थोड़ी सी सही कर लें ताकि हमारी टीम को आसानी हो जाए। ये आप लोगों के सवालात वो कर रहे हैं या अपनी शिकायतें क्लियर कर रहे हैं? देखिए कुछ और ही हो रहा है सवालात की आड़ में. हाँ जी. अच्छा, सबके कोई ना कोई फैमिली में फेवरेट मेंबर्स होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, उनसे हर चीज डिस्कस। फेवरेट या क्लोजेस्ट? दोनों में फर्क है. अच्छा. क्लोजेस्ट समझ लें। हाँ, क्लोजेस्ट अलग है, फेवरेट अलग है. क्लोजेस्ट समझ लें जिनसे हाँ. हम हर चीज शेयर करते हैं. किसी के अम्मी होते हैं, किसी के अब्बू होते हैं, किसी के भाई बहन होते हैं. ये कर लिया, ये कर लिया. तो आपके कौन है सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट और क्यों? Okay, so I'm close to 2 people in my family. Shit, ये तो मेरे अंदर के secrets हैं. अच्छा. So I'm close to my sister and my dad. But it's so ironic that the things I'm close to my dad, I'm not close to my sister, and the things I share with my sister, I don't share it with my father, because obviously, you know, बहुत सारी चीज़ें पापा से शेयर नहीं हो सकती हैं, जो जिनके ऊपर ज़हरा जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें पापा से शेयर हो रही होती हैं वो उससे नहीं शेयर हो रही होती. सो आई थिंक आई एम क्लोज टू बोथ ऑफ देम. वाई? इसलिए कि पापा ऑब्वियसली आफ्टर माय मॉम वेंट, so I think he acted like a very good friend, a very good father, and I mean more than a father, he was a close friend. So I think उन्होंने वो बैरियर नहीं रखा था, एक वो जो एक डर खौफ वाला जो फादर का एक इमेज होता है. तो इस वजह से शायद I'm really close to him, and also he's always been there in my career की journey, गाइड करना और you know pick and choose में हेल्प करना. तो ये सारी चीज़ों में he was always there, so probably I'm very close to him for taking big decisions and a lot of other decisions. But when it comes to closeness about everyday dealing and managing things and organizing things and night outs and you know the things you want to do and not knowing your parents, तो वो जो है वो my sister handles that department. So yeah, I'm close to both of them. This is why I'm close to both of them. बहुत कुछ बता दिया. एक और मजेदार क्वेश्चन आया, हर किसी को रिजेक्ट होता है. तो your biggest regret from school? From school?
है काश मैथ्स पढ़ लेती, काश अकाउंट्स पढ़ लेती because I'm so weak with numbers. I'm so weak with numbers कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि अल्लाह ही चला रहा है मुझे, और अल्लाह के बाद मेरी फैमिली चला रही है मुझे, because when my father's around, he lives in London, so when he's around he looks after my accounts, when he's not around my sister looks after my accounts, no matter what. हाँ, बड़ी मजे की बात है, देखो, फैमिली बिजनेस में पड़ती है ना, तो बड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना आपके, कभी दिल नहीं कर रहा बात करने को, कभी आपस में कोई, बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल द फैक्ट्स we look after these things because they know okay, if we will not look after the accounts, she will destroy everything. So yeah, these are the two people who look after my accounts, because काश पढ़ लेती तो, बहुत आर्टिस्टिक थी, क्या करूं, नंबर्स से मेरी नहीं बनी, कलर्स से हमेशा बनती थी। So ये जो शो आता है ना अनुष्का डरा देता ना अंदर। तो चले तो से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो हर किसी ने अपनी एक ड्रीम जॉब की भी होती है, तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी, मतलब इस इंडस्ट्री में? गुर्बत के दिन याद दिला रहा है आदमी। देखिए, पहली जॉब जो होती है ना, बड़ी गुर्बताना टाइप्स होती है, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं होते और आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो जाहिर है कि आप बहुत गरीबाना काम से स्टार्ट लेते हैं, यू नो, द डर्टी जॉब्स। सो मेरी जो पहली जॉब थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंजॉय करेंगे। आई वॉज अ शैम्पू गर्ल in Germany. And I've done a lot of jobs, by the way, a lot of jobs. So I used to do just shampoos over there. सिर्फ मेरा काम था वहाँ पे लोगों को शैम्पू करना. So I enjoyed it quite for a while over there. फिर मुझे आहिस्ते आहिस्ते जो है वो ब्लो ड्राई गर्ल बना दिया गया था, तो वो मैंने जॉब एंजॉय की. बहुत सारी हैं जर्नी में, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रगल. हाँ, स्ट्रगल, या ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सेल्फ मेड पर्सन यार. आहिस्ते आहिस्ते ये सारी चीजें सेट होती हैं, कभी किसी दिन फुर्सत में बताएंगे कौन कौन सी जॉब्स की है. बट या, सो आई वाज अ शैम्पू गर्ल, इट वाज माय फर्स्ट जॉब. हमारा इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप अपना खुद एक शैम्पू लॉन्च करेंगे. देख, द शैम्पू गर्ल इज गोइंग टू लॉन्च द शैम्पू इंशाल्लाह. तो से आऊं या सो से आऊं? यार जिससे आना है आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि चलें, अगर आप स्टाइलिस्ट नहीं होती, एक क्लिनिक पर हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती, तो आप क्या होती? यार मैं इमेजिन तो नहीं कर सकती अपने आप को, बिकॉज द लव फॉर हेयर इज टू बिग फॉर मी, बट द लव फॉर फूड इज ऑल्सो वेरी बिग फॉर मी. सो आई थिंक अगर मैं हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होती, या हेयर आर्टिस्ट नहीं होती, या मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती, तो मैं एक culinary आर्टिस्ट जरूर होती, और शायद अब तक मेरा एक रेस्टोरेंट होता ही होता. ये तो हम लोग भी इमेजिन कर सकते हैं, है ना? I love feeding people, hosting people. मजा आता है मुझे ये काम करके. हम फिर इमेजिन करते हैं कोकोनट ग्रुप, फिनिश परवेज. ये तो फैंसी नहीं होता, बड़ा कैजुअल टाइप, हिप हॉप, यू नो, people are sitting playing board games, कहीं साइड पे जैज, कोई एक म्यूजिक चल रहा होता, साथ में कोई गाने वाले बिठा देते हैं हम, मजा आता, मजे के खाने देते हम, थोड़ा सा पर्शियन खाने भी डाल देते ना, थोड़ा सा टच. तो फिर कब आए? पहले मैं लोगों के बाल काटने से फुर्सत मिल जाए मुझे, तो फिर मैं रेस्टोरेंट खोल लूंगी इंशाल्लाह. हाँ जी. तो नो सर्जरी के बारे में बताऊं? हाय अल्लाह. हाँ, लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो, तो अच्छी बात है, चलो इसी मेरे ही प्लेटफॉर्म पे. वैसे मैंने मॉर्निंग शो पे काफी डिस्कशन किया हुआ इस बारे में, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं दोबारा पर्सनल ओपिनियन आपका चाहिए ना लोगों को. भाई देखें, माय नोज वाज बॉदरिंग मी फ्रॉम माय टीनेज, बिकॉज आपको पता है ईरानी बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने फीचर्स को लेके, और ईरान में तो खैर बहुत कॉमन है, यहाँ पाकिस्तान में ज़रा सा लोग समझते हैं वो सर्जरी में, वहाँ तो हर लड़की करा रही होती है. तो मेरी दादी ने मुझे सजेस्ट किया था व्हेन आई वाज लाइक 13
तो उस वक्त जो है वो अम्मी ने नहीं करवाई, और पता नहीं क्यों नहीं करवाई, वैसे आई स्वेयर करवाई लेती सही टाइम पे तो एंजॉय तो कर पाती मैं अपनी नाक, बट खैर एनीवेज, सो इट वाज बैक ऑफ द माइंड, इट वाज देयर. So when I came into this business, and I had no clue that because of my what the kind of a work I do, मुझे कैमरे पे भी जाना पड़ेगा कभी, आप सोचते नहीं है. तो जब कैमरे पे आने लगी तो थोड़ा सा कॉन्शियस होती थी मैं हमेशा, साइड एंगल्स और ऐसा एंगल तो वैसा एंगल. तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि जब इतना ही मुझे बॉदर कर रहा है तो माइट एज वेल आई शुड जस्ट गेट इट डन. तो पहले डिसाइड हुआ जी लंदन, फिर डिसाइड हुआ ईरान, फिर कोविड आ गया. अब जब कोविड आ गया तो मैंने कहा भाई ये तो बेस्ट टाइम है, पाकिस्तान में कोई अच्छा सर्जन ढूंढो और करवा दो. तो बस मैंने कोविड के आई थिंक कुछ इनिशियल 6-8 मंथ्स के बाद ओपीडीज खुल गए थे, और मैंने एक अच्छे सर्जन, आई हैव अ लॉट ऑफ सर्जन फ्रेंड्स जिनसे मैंने पहले मशवरा किया. फिर उसके बाद मैंने बेस्ट सर्जन निकाला, डॉक्टर अरफात, पाकिस्तान के बहुत अच्छे, काफ़ी मशहूर हैं राइनोप्लास्टी के लिए. तो फिर उनसे मैंने ईमेल पे अपना डेट वगैरह सेट किया, बिकॉज वो पाकिस्तान कराची विजिट करते हैं और फिर सर्जरीज करते हैं. तो मैंने डिसाइड किया और मैंने जाकर सर्जरी करा ली. सर्जरी का अगर आप वैसे पूछें तो पेन का थ्रेशोल्ड शायद मेरा ज़्यादा है, तो इसे मैं ये नहीं कहूँगी. अगर आप डिटेल्स मालूम करना चाहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था, तो डिस्कम्फर्ट था, दर्द नहीं था. डिस्कम्फर्ट था फॉर 15 डेज, जब तक वो आपका स्प्रिंट लगा हुआ होता है, और जब वो स्प्रिंट निकल जाता है तो उसके बाद आपको कोई ऐसा खास तकलीफ नहीं होती. बल्कि मेरा तो एक नॉस्ट्रिल काम ही नहीं करता था पूरी ज़िंदगी, बिकॉज गोश्त बढ़ा हुआ था या पता नहीं हड्डी बढ़ी हुई थी. तो वो उसके बाद काम करने भी लग गया. तो मेरे लिए तो बेनिफिशियली, बिकॉज वो ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हैं, और या तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी मेरी सर्जरी में, बिकॉज पहले उन्होंने करा, फिर उसको स्टिच किया, फिर उन्होंने दोबारा खोला, री स्टिच किया. बट फाइनली उन्होंने, आई वुड अप्रिशिएट हिज वर्क, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली जो चीज़ मुझे चाहिए थी वैसी दी. मुझे बहुत आर्टिफिशियल लुक नहीं चाहिए था कि बहुत पतली हो जाए. और मेरे फीचर्स, बिकॉज माई मदर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई हैव अ पर्शियन ब्लेंड इन माई फीचर्स ऑल्सो. तो मेरे फीचर्स कम्प्लीटली जो है ना वो पाकिस्तानी या इंडियन नहीं है. तो उसके लिए एक शेप ऑफ नोज क्रिएट करना, बीइंग अ पाकिस्तानी सर्जन वाज अ बिग जॉब, एंड ही डिड इट, एंड he's done a marvelous job. I'm really happy, thanks to Dr. Arfat. Yeah. Okay, Vinish, it was a very, very, very informative and बहुत अच्छा एक Q&A सेशन रहा. Thank you. और Thank you. कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम और लोगों के सवाल भी लेके आएंगे, फिर हम दोबारा एक और जगह पे मुलाकात करेंगे और ये चीज़ें करेंगे. आपका बड़ा शुक्रिया, आपने अपनी टीम को टाइम दिया. मैंने अपनी टीम को टाइम दिया. आपने हमारा जो टाइम, इनको ताने मारने का मौका मिल गया. नहीं इंशाल्लाह हम जो है वो अब YouTube वीडियोस इसी तरह बनाते रहेंगे. तो आप लोग जो है वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देख सकें और अनस की मेहनत को सराह सकें. थैंक यू. बाय बाय.